Continuing with probability, it is 31/12/2020. Okay, we'll start with miscellaneous exercise, question number 14. Now, question number 14 is a very interesting question. Let's talk about it. So, if each element of a second order determinant is either 0 or 1, second order determinant है, तो second order determinant कैसा होगा? A11, A12, A21 and A22, right? So I have, और यहाँ पे entries क्या हो सकती है? Either 0 or 1. What is the probability that the value of the determinant is positive? Assume that individual entries of the determinants are chosen independently, each value being assumed with probability half. तो वो बोलता है कि मेरे पास कितने, पहले मैं total outcomes देखूं कि मेरे पास कितने determinants possible हैं. तो मैं कहता हूँ I have 4 places to fill and every place has 2 options, either 0 or 1. Yes or no? तो ऐसे कितने डिटर्मिनेंट्स बनेंगे? 16. फॉर एग्जाम्पल, सब जगह 0 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, yes, यहाँ 1 और 1 आ जाए. बात समझ में आ रही है क्या? Yes or no? yes sir, और क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. I mean, and बहुत सारी possibilities possible है, right? I am not going to waste my time writing all the possibilities and so on. So these are total 16 possible outcomes. Now वो बोलता है what is the probability that the determinant has a positive value? तो मैं कहता हूँ इसकी determinant value आएगी क्या? अगर मैं इसको A कह देता हूँ, इसका determinant value A क्या आएगा? A11 A22 minus A12 A21. Yes or no? Now ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो देखो ये वैल्यू 1 होनी चाहिए और ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए. Yes or no? अगर इस वैल्यू को 1 करना है तो मैं केसेस लेता हूं. केस 1 फेवरेबल आउटकम्स लिख रहा हूं ना, है ना. फर्स्ट केस में A11 1 हो जाए, A22 भी 1 हो जाए, A12 0 हो जाए, A21 भी 0 हो जाए. केस 2 ले लो, तो देखो ये 1 और ये 0 हो जाएगा. फिर A11 1 हो जाए, A22 1 हो जाए, A12 1 हो जाए, A21 0 हो जाए. और केस 3 A11 1 हो जाए, A22 1 हो जाए, A12 0 हो जाए और A21 0 हो जाए. तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए मेरे पास? 3. ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज होंगी जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी. यस और नो? yes sir, सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 3/16. सो दिस इज लाइक मोर और लेस डिटर्मिनेंट की अंडरस्टैंडिंग हमें जरूरत है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? अच्छा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबिलिटी कि ये 1 हो जाए और ये 0 हो जाए. तो देखो ये 1, तो इसको भी 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा. मैं और तरीके से बता देता हूँ, यहाँ पे 0 लाने के लिए ये दोनों 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. सो 3 पॉसिबिलिटीज. यस और नो? खैर, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. An electronic assembly consists of two subsystems, say A and B. From previous testing procedures, the following probabilities are assumed to be known. Probability that A fails 0.2. Probability that B fails alone is 0.15, and probability of A and B fail is equals to 0.15 again. Now let me talk about events. मैं कहता हूँ event E1 ले लो, A fails, और E2 ले लो,
B fails. तो देखो E1 और E2, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटीज फिल करना शुरू करते हैं। देखो A फेल्स मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, B fails alone मतलब 0.15 is the probability of ये वाला पार्ट B only, and A and B मतलब A intersection B मतलब E1 intersection E2 0.15. Any problem? Yes sir. No sir. 0.05 हो जाएगा। Evaluate the following probabilities. क्या बोलता है वो फर्स्ट पार्ट में? Probability of A fails provided B has failed, मतलब probability of E1 provided E2 has happened. Yes or no? A fails मतलब E1 और B fails मतलब E2. कोई प्रॉब्लम? E1 intersection No, E2 sir. 0.15 and probability of E2. अब probability of E2 अगर मैं बात करूं तो 0.3 आएगी क्या? Yes, sir. So the probability is half. And second part वो बोलता है probability that A fails alone. A fails alone मतलब 0.05, E1 only. Yes or no? So very easy question based upon the Venn diagram. Any problem, anyone? Moving on, we have already discussed question number 16th in yesterday's class. Let's talk about question number 17th. देखो given है A and B are two events such that probability of A is not equals to 0 and probability of B provided A has happened is 1. इसका मतलब क्या हुआ? Probability of A intersection B upon probability of A is equals to 1. इसका मतलब probability of A intersection B क्या हो गया? Probability of A हो गया क्या? तो ये कुछ ऐसा केस बनेगा क्या? Yes or no? Yes, sir. So probability Yes of sir. intersection भी probability of AC केस में होता है। इसका मतलब क्या हो गया? Yes, sir. A is a subset of B. Therefore, option 1 is correct. Any problem, anyone? No, sir. Moving on. Let's talk about question number 18th. Probability of A provided B has happened is greater than probability of A. इसका मतलब क्या हो गया? Probability of A intersection B upon probability of B is greater than probability of A. इसका मतलब probability of A intersection B is greater than probability of A into probability of B. Yes or no? Yes, sir. Now, as much as I want my option B to be correct, देखो option B में गलत लिखा हुआ है, less than का साइन आ रहा है, so that is not correct. तो वो तो गलत हुई Yes क्या? sir. Option C. हाँ. Now let's talk about other options. तो वो देखो probability of B provided A has happened के बारे में बात करता है. So, B intersection है या फिर A intersection B लिख देता हूँ, B intersection A को, ताकि confusion ना हो. Divide by probability of A. Now they are comparing it with, in first and third option they are comparing it with probability of B. और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बारे में ऑलरेडी पता है, तो मैं क्या करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड ए हैज हैपेंड इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। Yes sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंसिल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड ए हैज हैपेंड इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। Yes or no? Yes, sir. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. So very easy question, but obviously तुम्हारी understanding clear होनी चाहिए भाई कि कहाँ हम inequalities को satisfy कराते हैं. So these are good 1 mark questions, okay? Do not leave them. इसीलिए मैं करा रहा हूँ.
Question number 19. If A and B are two events such that probability of A minus plus probability of B minus probability of A and B मतलब probability of A intersection B is equals to probability of A. So probability of A से probability of A cancel, probability of B is equals to probability of A intersection B. Yes or no? Yes, sir. So probability of A provided B has happened क्या होता है? Probability of A intersection B upon probability of B और ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1. So option B is correct. Yes or no? Yes, or no? sir. Good. Now closing this exercise, we'll move on to the last topic of our probability chapter, and that is probability distribution of a random variable. Everyone, please write the heading probability distribution of a random variable. Now क्या होता है random variable, उसके बारे में चर्चा करते हैं. So random variable is normally represented by x. ठीक है? It's a function on sample space. इसका डेफिनेशन क्या है कि एक फंक्शन है जो कि किस पे वर्क करता है, सैंपल स्पेस पे वर्क करता है. किस पे वर्क करता है, सैंपल स्पेस पे. यस. नाउ सैंपल स्पेस पे किस तरह से वर्क करता है. फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और सारे एग्जांपल्स बहुत इजी होते हैं इसके. एग्जांपल्स जैसे मैं कहता हूं 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ हेड्स. तो मैं कहता हूं भाई मेरा जो सैंपल स्पेस है वो क्या क्या बनता है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ हेड्स. तो नहीं, इस नंबर ऑफ हेड्स को मैं क्या ले लेता हूं, मेरा रैंडम वेरिएबल ले लेता हूं. क्या ले लेता हूं इसको, रैंडम वेरिएबल. तो देखो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, या तो हो सकता है एक भी हेड ना आए, हो सकता है एक हेड आए, हो सकता है 2 हेड आए, और हो सकता है 3 हेड आए. यस और नो? Yes, sir. नाउ Yes, sir. रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज. 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं और 0 पे हेड चाहिए, तो 3c 0, हेड की पावर 0, टेल की पावर 3. आई बिलीव सबको समझ में आता है ये चीज. Yes, sir. एक हेड चाहिए तो 3 में से एक जगह सेलेक्ट करिए, हेड एक जगह, टेल 2 जगह. 3/8. 3c2, हेड 2 जगह, टेल एक जगह, अगेन 3/8. एंड 3c3, हेड की पावर 3 और टेल की पावर 0. क्यों? क्योंकि टेल आना ही नहीं चाहिए भाई, तीनों जगह हेड आना चाहिए. तो द प्रोबेबिलिटी वुड बी 1/8. ऑल द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज शुड बी 1. यस और नो? समझ में आता है क्या? Yes. Yes, sir. लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ हेड्स लिखा था, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स ना लिख के लिखता हूँ फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स. नाउ जब डिफरेंस की बात की जाती है तो नेगेटिव नहीं आती है वैल्यू. ओके, यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, मैंने यहाँ पे क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स. तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है. मैं मेरा सैंपल स्पेस अगर लिखूं तो जैसे यहाँ पे मैंने जो सैंपल स्पेस लिखा था वो क्या था, 0 हेड 3 टेल्स, 1 हेड 2 टेल्स, 2 हेड 1 टेल एंड 3 हेड 0 टेल. राइट? इसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे मेरा सेकंड एक्स डिफाइन करता हूँ इस वाले क्वेश्चन के लिए, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स. अब यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3. यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1. यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1. और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 3. यस और नो? Yes, sir. इनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे सेम रहेगा, 1/8, 3/8. केसेस तो सेम ही लिए हैं मैंने, 3/8 और 1/8.
yes or no? Yes, sir. जब मैं फाइनल टेबल बनाता हूँ, फाइनल टेबल कैसे बनेगी भाई? x की दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 3 या फिर 1, और उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। 3 कब कब आ रहा है? 1/8 और 1/8, 2/8, एंड 1 कब कब आ रहा है? 3/8 एंड 3/8, 6/8। एनी प्रॉब्लम एनीवन? कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है? कुछ नहीं होता, प्रोबेबिलिटीज हम कुछ नई नहीं सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी सारी वही चलेंगी, सारी एक्सपेरिमेंट्स वही होंगे, बस यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एक x डिफाइन कर दिया जाता है कि इसके रिस्पेक्ट में बात करो। यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। मूविंग ऑन टू सम क्वेश्चंस। या इस एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस डिलीटेड हैं हमारे क्वेश्चंस डिलीटेड इसलिए हैं, डिलीटेड पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन है हमारे। इसमें नॉर्मली मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कोर्स में नहीं है। तो प्लीज ये नोट कर लें अपनी एक्सरसाइज के ऊपर कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस नाउ। मीन को ही एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, मीन को ही क्या बोलते हैं? Expected value. एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये सारा सिलेबस में हमारे डिलीट कर दिया गया है। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या बात करेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे हमेशा? Probability every distribution. question, but we will not worry ourselves with mean and variance. Am I making myself clear here? Yes, sir. Good. Let's start with exercise 13.4. And the questions would be very easy, you will see. In the question number 1 वो कहता है state which of the following are not the probability distributions of a random variable and give reasons for your answer. कि कौन कौन से random variable नहीं हो सकते और क्यों? तो मैं कहता हूँ फर्स्ट पार्ट x 0 1 2 दे रखा है और उनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है 0.4 0.4 एंड 0.2। तो मैं कहता हूँ ये प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है, तो ये रैंडम वेरिएबल है। मैं अगर सेकंड पार्ट की बात करूं, देखो सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ रही है। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, मेरे को -0.1 दे रखा है। नेगेटिव कभी प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होती है क्या? No, sir. इसका मतलब ये मेरा रैंडम वेरिएबल नहीं हो सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिफाइंड ही प्रॉपर्ली नहीं है। इन द थर्ड केस जो तुम्हें प्रोबेबिलिटीज गिवन है 0.6 0.1 एंड 0.2 दे रखी है, इन सबका सम 1 आता ही नहीं है। नहीं आता। यस सर। इसका मतलब ये भी एक रैंडम वेरिएबल नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। And in the fourth case, the probabilities that are given to me are 0.3, 0.2, 0.4, 0.1 and 0.05। ये सब का भी सम 1 नहीं आता। इसका मतलब ये भी रैंडम वेरिएबल नहीं हो सकता। Any problem, anyone? नो सर। Okay, moving on. Let's talk about question number 2. Question number 2 क्या है देखें। An urn contains 5 red and 2 black balls. 5 red balls and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn. इसके अंदर से 2 balls निकाल ली गई। Let x represent the number of black balls. x क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो देखो 2 बॉल्स निकाली गई तो x की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो 0 ब्लैक बॉल्स आएगी, या 1 ब्लैक बॉल आएगी, या फिर 2 ब्लैक बॉल्स आएगी। यस। यस और नो? तो इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? एंड इज x अ रैंडम वेरिएबल? यस, x इज अ रैंडम वेरिएबल, क्योंकि जब मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखूंगा तो उसके अंदर सारे केसेस कंसिडर हो जाएंगे। कैसे भाई? 0 ब्लैक बॉल्स आनी चाहिए, इसका मतलब 5c2/7c2 हो गया। एक ब्लैक बॉल आनी चाहिए, मतलब 2 ब्लैक बॉल्स में से एक बॉल सेलेक्ट कर लो, 5 रेड बॉल में से एक बॉल सेलेक्ट कर लो, और टोटल आउटकम्स तो 7c2 है ही। यस और नो? यस। एंड दोनों ब्लैक बॉल्स आनी चाहिए, इसका मतलब 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर लो, डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यस और नो? Yes, sir. So this is 1/21, this is 10/21, and this is also 10/20। देखो सबका सम 1 आ रहा है क्या?
इसका मतलब ये एक रैंडम वेरिएबल है। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. गुड। सो दीज आर क्वेश्चंस आर वेरी इजी क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटीज कुछ नहीं है, सारे एक्सपेरिमेंट्स सेम है, बस हर एक एक्सपेरिमेंट में क्या डाल देते हैं ये लोग, एक्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 विल बी योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 विल बी योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 हम बात करेंगे। देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो x क्या हो गया, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड बाय, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सक्सेस क्या है मेरे लिए, अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो देखो, दो डाइस हैं तो दोनों पे अपने अपने आउटकम्स आएंगे। हो सकता है x 0, मतलब दोनों पे ही नंबर 4 से ज्यादा ना आए। हो सकता है एक डाइस पे ऐसा हो कि नंबर 4 से ज्यादा आ जाए, हो सकता है एक डाइस पे नंबर 4 से कम आ जाए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों ही डाइस पे नंबर ग्रेटर Yes, देन sir. 4 आ जाए। यस और नो? Yes, sir. ऑब्वियसली दो मैंने वो किए हैं, तो अब मैं बात करता हूँ इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज की। तो मैं कहता हूँ दोनों ही नंबर्स नंबर 4 से बड़े नहीं होने चाहिए। 4 से बड़े नहीं होने चाहिए का क्या मतलब हो गया, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है वैसे, हाफ नंबर ग्रेटर देन 4, सॉरी 4/6। तो Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो गया, 2/6 हो गया क्या? 2/6. अब यहाँ पे तो मुझे Yes, दोनों ही sir. जगह फेलियर चाहिए, तो 2/6 इंटू 2/6। यहाँ पे मुझे एक सक्सेस चाहिए, तो दो में से एक जगह सेलेक्ट कर लो, एक जगह सक्सेस आ जाएगा और एक जगह फेलियर आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. और यहाँ पे Yes, दोनों ही जगह सक्सेस चाहिए, 4/6 इंटू 4/6। एनी प्रॉब्लम एनीवन? सर ये एक बार वापस बता दूंगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं कहता हूँ बेटा, यहाँ पे सक्सेस क्या डिफाइन कर रखा है कि नंबर ग्रेटर देन 4। तो मतलब एक डाइस है, इस पे मान लो 53 आया, तो इसमें सक्सेस कितनी है, 1 है। क्यों? क्योंकि एक डाइस पे Yes, नंबर 4 से बड़ा है और एक डाइस पे नंबर 4 से छोटा है। अगर मैं yes, कहूँ मेरे sir. पास आउटकम आया दोनों डाइस पे मिला के 6 and 5, तो यहाँ पे मेरी सक्सेस कितनी हो गई, दोनों सक्सेस हो गई। Yes, sir. और यहाँ पे अगर मैं कहूँ 3 और 1 आया, तो कितनी सक्सेस हो गई, 0, क्योंकि एक भी डाइस पे ऐसा नंबर नहीं है जो 4 से ज्यादा है। यस और नो? Yes, sir. सर तो ये probability of success 4/6 लिखेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ओह मैंने गलती लिख दी ना, 2/6 आएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 4/6 आएगा। दिस इज माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। ओके, तो यहाँ पे 4/6 आएगा और यहाँ पे 2/6 और 2/6 आएगा। ओके, Yes, sir. गुड। सेकंड केस क्या दे रखा है, अब देखो सेकंड केस इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे सक्सेस क्या दे रखा है, 6 appears on at least one dice, कि कम से कम एक डाइस पे 6 आना चाहिए तो सक्सेस होगी। तो भाई यहाँ पे सक्सेस या तो होगी या फिर नहीं होगी। यस और नो? भाई देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स और बीच में भी आएंगे। आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग। देखो मेरी सक्सेस कहाँ कहाँ आ रही है, ये मेरी सक्सेसेस हैं। यस और नो? क्योंकि यहाँ पे Yes, sir. 6 इज अपियरिंग एटलीस्ट वंस ऑन द डाइस, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 11/36। यस और नो? एंड जब एक भी जगह 6 ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 25/36।
Yes, sir. Moving on, question number 7th. Sorry, 6th. मैंने 5th क्वेश्चन बताया है ना तुम्हें? हाँ, क्वेश्चन नंबर Yes, 6 sir. sir. 6th के बारे में बात करेंगे. From a lot of 30 bulbs which include total कितने bulbs हैं? 30. इसके अंदर से 30. डिफेक्टिव कितने हैं? 6. और नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे? 24. Yes, और sir. वो बोलता है a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. With replacement हो रहा है मतलब जो मैंने बल्ब निकाला, चेक किया, उसको वापस लॉट के अंदर डाल दिया. ठीक है, तो भाई वो बोलता है इसके अंदर से 4 बल्ब्स निकाले. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स? तो x क्या हो गया? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स हो गए क्या? Yes sir. Yes, sir. अब हम प्रोबेबिलिटीज, अब इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं? भाई मैंने 4 बल्ब्स जब निकाले तो हो सकता है 0 बल्ब डिफेक्टिव आए, हो सकता है 1 बल्ब डिफेक्टिव आए, हो सकता है 2 बल्ब्स डिफेक्टिव आए, हो सकता है 3 बल्ब्स डिफेक्टिव आए, हो सकता है चारों बल्ब्स डिफेक्टिव आए. So we have to think our sample space in some different way now. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. कोई भी प्रॉब्लम है किसी को समझने में? No, sir. अब मैं इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज अगर लिखूं तो हर जगह मुझे, अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज 4/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब इज 1/5. मैं अगर इस लॉट में से एक बल्ब निकालता हूं, विथ रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो सम प्रोबेबिलिटीज तो सेम रहने वाली है क्योंकि चेंज ही नहीं होगा कुछ भी. तो देखो, 0 डिफेक्टिव बल्ब्स आने चाहिए, मतलब सारे नॉन डिफेक्टिव आने चाहिए चारों जगह. तो चारों में से चारों जगह सेलेक्ट कर ली और सब जगह क्या आने चाहिए? डिफेक्टिव बल्ब्स आने चाहिए, सॉरी नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स आने चाहिए. और डिफेक्टिव नहीं आना चाहिए. एक जगह डिफेक्टिव आना चाहिए, तो मैं कह देता हूँ 4 में से एक जगह सेलेक्ट कर लो. एक जगह डिफेक्टिव आना चाहिए और 3 जगह नॉन डिफेक्टिव आने चाहिए. यस और नो? Yes, sir. Yes sir. 4 में से 2 जगह सेलेक्ट कर लो, 2 जगह डिफेक्टिव, 2 जगह नॉन डिफेक्टिव. 4 में से 3 जगह सेलेक्ट कर लो, 1 जगह डिफेक्टिव, 3 जगह नॉन डिफेक्टिव, सॉरी 3 जगह डिफेक्टिव और 1 जगह नॉन डिफेक्टिव, एंड चारों जगह ही डिफेक्टिव आ जाएं. एनी प्रॉब्लम एनीवन? प्रोबेबिलिटीज ये रही, तुम वैल्यूज पुट करोगे, यू विल गेट योर आंसर. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No No, sir. sir. So very easy question. Again, what we have to learn in this exercise is how we are looking at sample space depending upon x. कि जो भी मेरा sample space बनेगा उसमें मैं x को किस तरह से incorporate कर रहा हूं. Moving on to the next question, question number 7. Question number 7 की जो first line है, it is very important. Underline this line. A coin is biased so that head is 3 times as likely to occur as tail. तो देखो coin को toss किया तो या तो head आएगा या tail आएगा. So probability of getting a head is, sorry, probability of getting a head plus probability of getting a tail is 1. Now यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक biased coin है. Normally तो क्या होता है, head आने की probability half, tail आने की probability half. But Yes sir. यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है the probability that head is, sorry, the head is 3 times as likely to occur as tail. The probability of head is 3 times probability of tail. This is the understanding that we have to take from this question. Now probability of head को यहाँ put करो, so 3 times probability of tail plus probability of tail as 1. Probability of tail क्या आ गया? 1/4 and probability of head क्या आ जाएगा? 3/4. Any problem anyone? Now if the coin is tossed twice, coin को दो बार टॉस किया गया, they find the distribution, probability distribution of number of tails. तो x क्या हो गया? Number of tails हो गई क्या? तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं? या तो 0 टेल आएगी, या 1 टेल आएगी, या फिर 2 टेल्स आएंगी. इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज यू कैन इजीली राइट. दिस विल बी योर होमवर्क. What I wanted to take away from this question is this, very important. Any problem anyone? No sir. No sir. No, sir. Moving on to question number 8.
Question number 8 and question number 9 are same. I am discussing question number 8. Question number 9 will be your homework. A random variable x has the following probability distribution. मुझे probability distribution पूरा दे रखा है. I am not writing the entire probability distribution. Now मुझे एक बात पता है कि जितनी भी x की probabilities आती हैं, उन सारी probabilities का sum क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए क्या? Yes, sir. तो इसका मतलब k plus 2k plus 2k plus 3k plus k square plus 2k square plus 7k square plus k is equals to 1. So k square plus 2k square, 3k square plus 7k square, 10k square plus 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9. 9k minus 1 is equals to 0. So 10k square plus 10k minus k minus 1 is equals to 0. 10k minus 1 and k plus 1 is equals to 0. K की वैल्यू 1 by 10 और k की वैल्यू -1. Now k की वैल्यू -1 is not acceptable because probability can never be negative. So k की वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे? 1 by 10. Any problem? Yes, sir. No, No, sir. sir. अब देखो मुझे बोलता है probability when x is less than 3. इसका मतलब probability when x is equals to 0 plus probability when x is equals to 1 plus probability when x is equals to 2. 3k. Yes or no? Yes, sir. That is equals to 3k. So probability would be 3 by 10 क्योंकि k की वैल्यू तो मुझे मिल ही गई है. Yes, sir. Probability when x is greater than 6. x greater than 6 है तो मैं क्या कह दूंगा? Probability of x when 7, 7k square plus k. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 17 by 100. 17 by 100. And next वो बोलता है probability when x lies between 0 and 3. इसका मतलब probability when x is equals to 1 plus probability when x is equals to 2. It would be same as 3 by 10. 3k and 3 by 10. Any problem? Anyone understanding the type of question that it is? No, sir. Very good 2-mark question. 1 mark में भी आ जाता है, 2 mark में भी आ जाता है. So we have to understand it carefully and properly. Question number 9 is same. The writing का way फर्क आ गया है. एक बार attempt करेंगे and then if you have problem, we'll talk about it. Now in question number 10, देखें ध्यान से. Find the mean of heads in 3 tosses of a fair coin. अब जैसे mean है तो ये question हम नहीं करेंगे. But yes, Yes, sir. 3 coins का अगर toss किया और number of heads का probability distribution पूछा तो yes, I can easily say probability distribution में कोई problem नहीं. 11th question, 2 dice are thrown simultaneously if x denotes the number of sixes. भाई 2 dice को toss किया गया and they are talking about number of sixes. तो x क्या represent कर रहा है? Number of 6. तो x की वैल्यू क्या आ सकती है? 0, 1 and 2. Yes or no? Yes, sir. एक भी जगह 0 ना आए 25 by 36. एक जगह 0 आए 10 by 36 और दोनों जगह 6 आए 1 by 36. Yes or no? Yes, sir. Sir. Good. Question number 12 is a very good star mark question. इसका probability distribution तो हमें करना ही करना है. Everyone please pay attention to this question, okay? क्या सवाल है देखें जरा ध्यान से. 2 numbers are selected at random from the first 6 positive integers. मतलब 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इन 6 नंबर्स में से 2 नंबर सेलेक्ट किए गए तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6C2. Yes, sir. टोटल 15 पॉसिबिलिटीज हैं. अब वो 15 पॉसिबिलिटीज कैसी है देखो. 1 और 2 आ सकता है, 1 और 3 आ सकता है, 1 और 4 आ सकता है, 1 और 5 आ सकता है, 1 और 6 आ सकता है, 2 और 3 आ सकता है, 2 और 4 आ सकता है, 2 और 5 आ सकता है, 2 और 6 आ सकता है, 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 and 5 6. Yes or no? Yes, sir. Let x denote the larger of the two numbers obtained. मतलब x क्या है?
जो भी नंबर, दो नंबर्स मैंने सेलेक्ट किए, उसमें लार्जर नंबर क्या आ रहा है? तो देखो मैं कहता हूं 1 कभी भी नहीं आ सकता x की वैल्यू। क्यों? क्योंकि 1 किसी के भी साथ आए, 1 कभी लार्जर नंबर हो ही नहीं सकता। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आ सकती, x की वैल्यू 2 आ सकती है, x की वैल्यू 3 आ सकती है, x की वैल्यू 4 आ सकती है, x की वैल्यू 5 आ सकती है और x की वैल्यू 6 आ सकती है। नाउ इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, देखो 2 कब कब आएगा? सिर्फ एक केस ऐसा है जब 2 आएगा, जब 1 और 2 सेलेक्ट हुआ, उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है, तभी वो लार्जर नंबर होगा। बाकी तो 2 को किसी के साथ और पेयर कर दो, वो छोटा हो जाएगा नंबर। Yes, sir. नेक्स्ट 3 इज अ लार्जर नंबर, मुझे डिसाइड करना है। तो देखो 3 का कौन कौन से केसेस में ऐसा होगा? ये वाला केस में और ये वाले केस में। यस और नो? Yes, sir. 2 by 5. सिर्फ दो केसेस ऐसे होंगे जब 1 3 और 2 3 आएगा। सिमिलरली 4 कब बड़ा होगा? जब 4 इन तीनों से मिल जाए, 4 1 4 2 और 4 3 हो जाए। Yes, sir. 5 कब कब होगा? जब 5 1 हो जाए, 5 2 हो जाए, 5 3 हो जाए या 5 4 हो जाए। और 6 कब होगा? 5 केसेस में, 1 2 3 4 एंड। Yes, sir. तो ये मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दी। अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या मेरी बात? Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन, जहां पे भी मीन या वेरिएंस निकालने की बात आ रही है, हम वो नहीं करेंगे। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुम इजीली बना सकोगे। तो जैसे क्लास है, 14th क्वेश्चन है, अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स हुज एजेस आर गिवन. One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen and the age x of the selected student is recorded. तो x क्या है मेरा in question number 14? x is age of student selected. Yes or no? Yes, sir. तो एज ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्टेड मैंने x ले लिया। तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? जितनी एजेस हैं उतनी पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे 14 17 15 21 19 एंड सो ऑन। एंड कितने लोग हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज। ये तो बचपन वाला सवाल है 10th क्लास का। उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। 14 कितनी बार आ रहा है भाई? 14 एक ही बार आ रहा है तो 1/15। 17 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है तो 3/15। यस और नो? Yes, sir. इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, in a meeting 70% of the members favor and 30% oppose a certain proposal. तो मतलब जितने भी लोग हैं उसमें 70% एक्सेप्ट करते हैं ऑफर को और 30% रिजेक्ट करते हैं ऑफर को। member is selected at random. We take x is equals to 0 if he opposed, x is equals to 1 if he is in favor. तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? या तो 0 या 1। नाउ क्या पॉसिबिलिटी है कि जो इंसान मैंने सेलेक्ट किया वो अपोज करेगा? 30%। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा प्रपोजल को? 70%। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. Question number 16th and 17th again will be your homework. There's nothing much in those questions. These are easy questions, but obviously जब भी कभी जैसे e of x लिखा है, e of x का क्या मतलब है? expected value, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो we are not doing these questions. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. 16th and 17th you can only read and understand the probability distribution. You cannot find the answers to those questions.